Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is lecture number 12 of differential equation online session. Layout of the lecture. Initially, I will give a small review of what we have studied in lecture number 11. These are the contents of the current lecture. Initially, I will explain one of the method of Euler's equation. Euler's equation से related एक method हम already study कर चुके हैं. एक और मेथड को देखेंगे जो Euler equations को डील करता है. Initially, I will explain the methodology of the method, summary of the method, and then we will solve some of the examples, and then I will leave some questions for the sake of practice for you. Initially, in the last lecture, we have studied variation of parameters method for higher order differential equation. Variation of parameters method जो होता है, it is basically depending on g of x and this non-homogeneous part of the differential equation. If we take yc, initially we have to find this yc to find yp with the help of this method. Once you have calculated this yc, then go for the check of Wronskian. Wronskian check इसलिए करते हैं ताकि हमें ये confirm हो जाए कि every term is linearly independent. Then we will define yp. yp define करने का जो pattern था, that was y is equals to y1 into u by following this technique, taking the appropriate derivatives, putting it into a solution. We will find uk prime with the help of, this was just a representation of our Cramer's rule, integrating to remove this derivative, and finally we will get the required function u of k. Once the u of k is defined, that means your y is complete. If you are having multiple number of functions, तो आपका जो yp होगा u1 y1 plus u2 y2 1 by 1, we can solve for every function. साथ ही हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि if you are having a Cauchy Euler's equation, Cauchy Euler's equation की ये definition होती है कि it contains the same power of x as the order of the differential is xn dn xn minus 1 dn minus 1. हमने ये लास्ट लेक्चर में देखा था कि y is equals to x power m is a solution of such Cauchy Euler's equation. We have to put this y equals to xm into a differential equation to form an auxiliary equation. जब auxiliary equation solve करते हैं, for example, for the sake of explanation, हम लोगों ने क्या किया था कि second order differential equation ली थी और उसके roots को discuss किया था. If the roots are real roots of auxiliary equation and they are distinct in nature, simply आपके पास जो solution आएगा, that will be y1 is equals to x power m1 and y2 is equals to x power m2 for a fundamental set of solutions. If the roots are repeated, then you have to add this natural log of x. ये क्यों ऐड करते हैं, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था. If the roots are complex in nature, then x power alpha beta natural log of x, c2 beta natural log of x, and this will be the method to write the solution if we are having the complex roots. आज हम ये देखते हैं कि Cauchy Euler's equation, जिसको लास्ट लेक्चर में हमने ये कहा था कि y is equals to x power m is the main solution of that Cauchy Euler's equation. We can solve the solution of that equation with the help of this substitution. Second method ये कहता है कि if we substitute x is equals to e power t and t equals to natural log of x, basically ये एक ही substitution है. You can say
If we substitute x is equals to e power t in a Cauchy Euler's equation, then the coefficients will be transformed into the constant coefficients. मैं अगर यहाँ पर एक सिंपल सी Cauchy Euler's equation लिखता हूँ, Cauchy Euler's equation की रिप्रेजेंटेशन ये होती है dy by dx plus y is equals to 0 या d of x. क्वेश्चन ये कहता है कि अगर मैं इस x को रिप्लेस कर देता हूँ e पावर t से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ तो मेरे पास ये जो Cauchy Euler's इक्वेशन है ये जब न्यू फॉर्म में जाएगी तो इसके जो कोफिशिएंट्स हैं, दिस इज द कोफिशिएंट, ये कांस्टेंट कोफिशिएंट होगा, ये वेरिएबल कोफिशिएंट नहीं होगा। तो जब ये मेरे पास कांस्टेंट कोफिशिएंट की फॉर्म में चली जाएगी देन आई कैन अप्लाई एनी मेथड रिलेटेड टू द कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। x इक्वल्स टू e पावर t पुट करने का मतलब होता है t को नेचुरल लॉग ऑफ x लेट करना, ये दोनों एक ही substitutions है। If you apply dy by dx, dy by dx डायरेक्ट तो नहीं ले सकते, so I have to apply the chain rule, dy by dt, dt by dx, which can be converted as 1 by x dy by dx. That means यहाँ पर dy by dy by dx लिखा है वहां पर आपने क्या कर देना है 1 by x dy by dx सब्स्टिट्यूट कर देना है, ऑटोमेटिकली आपका x कैंसिल होकर खत्म हो जाएगा। सेम इज द केस डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर अगर अब आपने फाइंड आउट करना है तो अप्लाई द चेन रूल अगेन 1 by x यू विल गेट अ न्यू टर्म, यहाँ पर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा है वहां पर ये चीज सब्स्टिट्यूट करेंगे। सिमिलरली यू कैन एलिमिनेट x स्क्वायर। By using these kind of substitutions we can convert simply the variable coefficients of differential term to the constant coefficients. हम अपनी आसानी के लिए काम ये करते हैं कि जहाँ पर d by dx लिखा है उसे d बेसिकली नॉर्मली हमने ऑपरेटर का नाम यूज किया था तो हम उसे d कह देते हैं, और जहाँ d by dt आएगा वहां पर हम क्या करेंगे ये डेल्टा के सिंबल यूज करेंगे सिंपली। लास्ट स्लाइड पे जो ड्राइव किया है मैंने दैट इज x d इज इक्वल टू डेल्टा, x d का मतलब ये है कि लास्ट स्लाइड पे मैंने ये ड्राइव किया था dy by dx is equals to 1 by x dy by dt। मैंने यहाँ पर ये कह दिया कि dy by dx is suppose equals to d 1 by x and this part could be represented by the symbol. On further arrange I will get x d is equals to delta, which is the same substitution as used here. Similarly x square d square is equals to delta minus 1। अगर क्यूब आ जाए तो वहां से फर्दर हम आगे सिंप्लीफिकेशन या अपनी टर्म्स निकालना चाहें, these are the further terms which can be used. At this stage we suppose y is equals to e power mt to obtain an auxiliary equation and write the solution in terms of y and t. We then go back to x. ये बेसिकली वही रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन है जो हम लोग यूज करते हैं। हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे y is equals to e power mt को एज एन सोल्यूशन, जिससे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट करेंगे और जो हमारा सोल्यूशन होगा दैट विल बी सिंपली इन द फॉर्म ऑफ y and t। y and t की फॉर्म में जब आ जाएगा तो मगर t was not the original variable, it was introduced parameter, so we have to go back to x was the original parameter, so हम x की फॉर्म में वापस आएंगे, बैक सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं। क्वेश्चन की तरफ आते हैं so that question could be clear. Initially simply ये हमारे पास एक homogeneous Cauchy Euler's equation है। पहचान क्या है, जो डिफरेंशियल का ऑर्डर है x का भी वही ऑर्डर है, जो डिफरेंशियल का ऑर्डर है x का भी वही ऑर्डर है, इसी को लेके आगे चलते हैं। लास्ट स्लाइड में मैंने ये कहा था कि वी विल जनरेट एन ऑक्सिलरी इक्वेशन बाय यूजिंग दिस मेथड। सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे x equals to e power t or t is equals to natural log of x in a differential equation. In other words, you can say that
हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स डी को डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर को हम डेल्टा डेल्टा माइनस वन से रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेस करने के बाद जो न्यू फॉर्म हमारे पास बनेगी वो ये बनेगी। जब डेल्टा की बात करते हैं तो डेल्टा का मतलब होता है dy बाई डी टी, डेल्टा स्क्वायर का मतलब होगा सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, सिंपल डेल्टा का मतलब होगा फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव। इफ यू सपोज जैसे कि आपके पास जब ये x के डेरिवेटिव के साथ डिफरेंशियल इक्वेशन थी तब आप ये कहते थे कि लेट y इज इक्वल टू ई पावर एम एक्स द सॉल्यूशन। यहाँ पर t डेरिवेटिव के साथ ये इक्वेशन मौजूद है, देन यू विल सपोज सब्स्टिट्यूट दैट y इज इक्वल टू ई पावर एम टी बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। ये सॉल्यूशन सिर्फ उस सूरत में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं जब आपके पास कोफिशिएंट्स कांस्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल कोफिशिएंट्स के साथ आप ये सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। अगेन जब आप ये सब्स्टिट्यूट करेंगे वही मेथड जो आप पहले से जिससे बहुत अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं, डिवाइड बाई डी टी लें, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लें, पुट दैट इनटू अ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसमें पुट करने के बाद डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर ऑक्सिलरी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। दिस इज ऑफ सेकंड ऑर्डर। रूट्स बनाते हैं, कोई भी मेथड यूज करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करते हैं, यू विल गेट द रूट्स। फिर आगे मसला शुरू हो जाता है, इफ द रूट्स आर डिस्टिंक्ट, इफ द रूट्स आर रिपीटेड, इफ द रूट्स आर कॉम्प्लेक्स। फिर आपने उसके अकॉर्डिंगली जो आपको आता है, जो मेथड आपको आता है, सब कुछ वैसा ही चल रहा है। हियर आई हैव टू रियल रूट्स विद द डिस्टिंक्ट नेचर, दोनों अलग हैं तो रूट्स को आप कैसे लिखा करते थे, c1 e पर पहले आप लिखते थे तो यहाँ पर x आया करता था। उसको x क्यों आता था, क्योंकि यहाँ पर t का डेरिवेटिव x का डेरिवेटिव होता था। here we will have c1 e power minus 1 of t। t क्यों आया है, क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास t है। c2 e power 4 of t, 4 क्यों आया है, क्योंकि सेकंड रूट 4 है। t क्यों आया है, क्योंकि t हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। but x is equals to e power t, therefore the answer will be this form। ये होती है बैक सब्स्टिट्यूशन, जो मैंने आपको कहा था कि ये रूल ऑफ सब्स्टिट्यूशन होता है कि आप ओरिजिनल वेरिएबल में वापस आते हैं। ओरिजिनल वेरिएबल वाज x एंड y, सो योर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ x एंड y। ये आपका आंसर कभी भी नहीं हो सकता। सो यू हैव टू सब्स्टिट्यूट बैक सब्स्टिट्यूट करते हुए आप अपने फॉर्म में, ओरिजिनल फॉर्म में वापस आएंगे, यू विल गेट द रिक्वायर्ड आंसर। एक और एग्जांपल की तरफ पढ़ते हैं। पहले आप टर्म्स देखते हैं, टर्म्स देख के आपको पता चल जाता है दिस इज अ कॉशी यूलर इक्वेशन। कॉशी यूलर इक्वेशन को सॉल्व करने के दो मेथड हैं, एक y इज इक्वल टू एक्स पावर m को यूज करें, सेकंड मेथड जो आज हम पढ़ रहे हैं दैट इज y इज इक्वल टू e पावर t को यूज करें। इफ यू यूज x इक्वल टू e पावर t, if you use x equals to e power t, you will get t natural log of x. It is the same kind of a thing. That means you have to replace xd by delta, x square d square by delta into delta minus 1. Differential equation में substitute करने के बाद you will get a differential equation। और ये जो नई differential equation आई है इसकी दो properties हैं। पहली बात ये है कि इसके अंदर इस वक्त जो दो वेरिएबल्स हमारे पास यूज हो रहे हैं वो y और t हैं, अब y और x नहीं है। सेकंड, जो नई डिफरेंशियल इक्वेशन आई है इसके जो कोफिशिएंट्स हैं a n of x are simply a n। दैट मीन्स कि अब ये वेरिएबल डिपेंडेंट नहीं है, अब आपके जो कोफिशिएंट्स हैं वो कांस्टेंट कोफिशिएंट्स हैं। ये a n of x इज सेम एज a n, x नहीं होगा बीच में। वंस यू फाउंड अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन, प्रोसीड करने के लिए मैंने आपसे ये कहा था कि यू विल फॉलो द सेम पैटर्न विच यू हैव ऑलरेडी डन। y इज इक्वल टू e पावर mx यूज करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन जनरेट होने के बाद फाइंड द रूट्स। इफ द रूट्स आर रिपीटेड, तो आप यह करते थे कि फर्स्ट टाइम आप -1/2 तो एज इट इज लिख देंगे, मगर जब सेकेंड रूट लिखते थे तो आप वेरिएबल को साथ मल्टीप्लाई कर देते थे। उस वक्त
मैं आपको उसी टर्म में लिख के दिखाता हूं जो आप पहले लिखते थे, दैट वाज y इज इक्वल टू c1 e पावर -1/2। आप पहले x लिखते थे, यहाँ पर t होगा, प्लस c2। यहाँ पर आप वेरिएबल जो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उससे मल्टीप्लाई करते थे, यहाँ पर वो t है, e पावर -1/2t। ये हमारे पास सिंपल फॉर्म बन जाती है। नाउ कम्स द बैक सब्स्टिट्यूशन। बैक सब्स्टिट्यूशन का मतलब ये होता है कि यू हैव टू रिवर्स द ऑर्डर। सब्स्टिट्यूशन e पावर t को रिवर्स करके x के फॉर्म में वापस आना है। So we will get c1 plus c2 natural log of x, x power -1/2। जहां पर t लिखा है, this substitution shows, जहां पर t लिखा है वहां natural log of x put कर दें, you will get your answer। One more example, this time we will follow the example with the initial conditions। initial conditions के बारे में आपको पता है कि ये जब भी appear होते हैं किसी भी क्वेश्चन के अंदर, इसका मतलब ये होगा we have to find the constants appearing in that equation। First, let me check, is this a Cauchy Euler's equation? Yes, it is a Cauchy Euler's equation। Now what I have to do is substitute x is equals to e power t। x equals to e power t का मतलब क्या होता है? मतलब होता है कि x d की जगह पे डेल्टा पुट कर दें, x स्क्वायर d स्क्वायर की जगह पे डेल्टा, डेल्टा -1 पुट कर दें। After that substitution, you will get a differential equation with the constant coefficients। Once you get a differential equation with a constant coefficient, and that differential equation is d square plus 2d plus 3y is equals to 0, homogeneous। Now form a now what you have to do is to form an auxiliary equation। For that auxiliary equation, just substitute y is equals to e power mt। mt को सब्स्टिट्यूट जब भी आप करेंगे, you will get an auxiliary equation जो कि ये है। अगर सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है तो ऑक्सिलरी इक्वेशन का ऑर्डर भी 2 आएगा। वंस द ऑर्डर इज 2, इट मींस यू कैन अप्लाई द क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला में अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 नहीं होता, इट मींस यू विल गेट टू डिफरेंट रूट्स। अगर दोनों डिफरेंट रूट्स रियल हो तो रियल के फॉर्म में लिखने हैं, हियर आई हैव टू डिफरेंट रूट्स बट बोथ आर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेचर। जब ये कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है तो आपने ये पढ़ा था कि जो रियल पार्ट होगा उसे एक्सपोनेंट की फॉर्म में ले जाते हैं, जो इमेजिनरी पार्ट होता है उसे कॉज और साइन के साथ लिख देते हैं। -1 is the real part and square root of 2 is the imaginary part because of this iota। Once your y is complete, what you have to do, जहां पर t लिखा है वहां पर natural log of x पुट करें, you will get your solution in the form of x and y। Now comes the turn for इनिशियल कंडीशन। इनिशियल कंडीशन ये कहती हैं, पहले जो सोल्यूशन आया है वहां पर x की जगह पे 1 पुट कर दें और y की जगह पर भी 1 पुट कर दें। पहली इनिशियल कंडीशन ये कहती है, यहाँ पर x लिखा है वहां 1 पुट कर दें, जहां y लिखा है वहां भी 1 पुट कर दें। सिंपल हम क्या करते हैं कि x की जगह 1, y की जगह 1 सब कुछ पुट करने के बाद आई विल गेट c1 इक्वल्स टू 1। सेकेंड इनिशियल कंडीशन ये कहती है कि आप पहले जो सोल्यूशन आया है उसका डेरिवेटिव लें। डेरिवेटिव लेने के बाद आप जहां पर x लिखा है वहां 1 पुट कर दें, जहां पर y प्राइम लिखा है वहां पर आप -5 पुट कर दें। आई विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। took the derivative as y prime is equals to this whole term। डेरिवेटिव एक्सप्लेन नहीं करता, आई होप सो कि आप कर लेंगे। जहां पर y प्राइम लिखा है आई सब्स्टिट्यूट -5, जहां पर x लिखा है वहां पर मैंने 0 पुट कर दिया। आई विल गेट द वैल्यू ऑफ दिस c2। सिंपल सिंप्लीफिकेशन के बाद दैट इज -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। वंस यू आर सक्सेसफुली फेमिलियर विद द वैल्यूज ऑफ c1, उससे c1 को c1 की जगह पे पुट कर दें, c2 को c2 की जगह पे पुट कर दें, योर सॉल्यूशन इज कंप्लीट। Again, we have one more homogeneous equation with the same nature।
सेम नेचर का मतलब ये है कि आप इसके टर्म्स को अगर देखें, डिफरेंशियल ऑपरेटर्स को देखें, डिफरेंशियल टर्म्स के साथ जो एक्स की पावर्स आ रही हैं वो वही हैं जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल है. दैट मीन्स दिस इज एन Cauchy Euler इक्वेशन. Proceeding in the same way, substitute x is equals to e power t, t equals to natural log of x. ये दोनों एक ही बातें हैं, मतलब उसका ये होगा. ये थर्ड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, थर्ड ऑर्डर की टर्म भी हम बना लेते हैं. इक्वेशन में जस्ट पुट करें, मैथमेटिकल और अलजेब्राइक ऑपरेशन यूज करें, प्लस माइनस करें, जो कैंसिल होता है कैंसिल करें, जो ऐड होता है उसे ऐड करें, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है उसे सब्ट्रैक्ट करें. यू विल गेट अ न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन विद द कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स. कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स को सॉल्व करने के लिए यू विल सब्स्टिट्यूट एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन. ये जो एक्सपोनेंशियल सॉल्यूशन है, दिस विल जनरेट an auxiliary equation of third order, and this auxiliary equation will give you the roots. One of the root is real and a pair of the complex roots. जो real root है उसे आप real के स्टाइल में लिख दें, जो complex root है उसे आप complex के स्टाइल में लिख दें. complex roots के imaginary और real part होते हैं, यहाँ पर real part इसका नहीं है. जब इसका real part नहीं है, यहाँ पर आपके पास real part वाली टर्म नहीं आएगी, सिर्फ imaginary part वाली टर्म आएगी. Once you are done with it, then apply the back substitution. जहाँ पर t लिखा है वहाँ natural log of x पुट करें, you will get your required solution. ये सिंपल सा काम है और इस लेक्चर में हम जस्ट इस चीज़ के बारे में स्टडी करेंगे. One more example, मैं जस्ट यहाँ पर अच्छा इस एग्जाम्पल में आप एक और चीज़ देखें, वो ये है कि नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन यूज की गई है. दिस इज नॉट अ डिफरेंशियल इक्वेशन. इससे पहले जो आपने मेथड्स पढ़े हैं वो सारे कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के लिए एप्लीकेबल हैं, वेरिएबल कोएफिशिएंट्स के लिए नहीं है. तो हम क्या करते हैं कि हम अपनी कॉची ऑयलर्स को पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट में ले जाते हैं. जब कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स के फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगा, देन वी कैन अप्लाई एनी ऑफ द मेथड रिलेटेड टू दैट डिफरेंशियल इक्वेशन. चाहे तो आप सुपरपोजिशन यूज करें, चाहे तो एनिहिलेटर ऑपरेटर वाली अप्रोच यूज करें, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें, उससे फिर हमें कोई फर्क नहीं. हमें सोल्यूशन से गर्ज है, मेथड से कोई मसला नहीं. इनिशियली द सब्स्टिट्यूशन जिसकी बात कर रहा हूं मैं बार बार, x इज इक्वल्स टू e पावर t. x इक्वल्स टू e पावर t सब्स्टिट्यूट करने के बाद I will have a differential equation which is in the form of constant coefficients. Again, let me explain. The differential equation is having two variables. One of them is y, another one is t. Y is the dependent variable while the t is the independent variable. Solution put करते हैं, y is equals to m power mt, e power mt. This will generate an auxiliary equation. ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आप किसी भी मेथड से बनाते हैं, उससे कोई गर्ज नहीं, हमें रूट से गर्ज है. रूट्स आगे 1 and 3, they both are real, they both are not repeated, they are distinct in nature. If they are distinct in nature, we can generate c1 e power t, c2 e power 3t. If we apply the back substitution, yc is complete. जब होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होती है तो इसी को हम सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं yc को. अभी हमने yp भी फाइंड करना है. yp फाइंड आउट करने के लिए वी राइट द डिफरेंशियल इक्वेशन एज दिस, x स्क्वायर से डिवाइड कर दिया. हम मेथड यूज करते हैं कि yp इज इक्वल्स टू u1 x प्लस u2 x क्यूब. सिंपल मेथड, आप इस मेथड से अच्छे तरीके से फेमिलियर हैं. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर yp u1 प्राइम w1 by w, u2 प्राइम w2 by w. ये कैसे फंक्शंस आ रहे हैं ये सारा काम आप पहले कर चुके हैं, सो मैं इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाता क्योंकि ये मेथड आप जानते हैं ये क्या है, कैसे आए. आज हम जस्ट इन मेथड्स को अप्लाई कर रहे हैं. w क्या होता है, x1 x cube 3x square. Basically these are the two roots appeared in the complementary solution yc.
yc में जो दो रूट्स आए थे ये दोनों वही हैं, एक x आया था, सेकेंड टाइम वाज x क्यूब, फर्स्ट वाज x, सेकेंड वाज x क्यूब, द डेरिवेटिव्स 1 and 3x स्क्वायर। जब आपने W1 जनरेट किया तो W1 आता है 0 और f of x, this is basically the f of x, second root। Similarly we can generate W2। W2 जनरेट करेंगे तो सेकंड कॉलम को इंटरचेंज किया, U1 प्राइम by using this formula, W1 by W values just put करें, this is W1, this is W, again W2 by W, you will get the value of U1 and similarly you will get the value of U2। देखें इसमें इस चीज़ की कोई कंडीशन नहीं होगी कि आप वो मेथड यूज़ करें। मैं मेथड क्यों नहीं एक्सप्लेन कर रहा, क्योंकि मेथड के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है। अगर आप में से कोई वेरिएशन ऑफ पैरामीटर में अच्छी कमांड रखता है तो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ करें। अगर आप वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूज़ नहीं करते, आप कहते हैं अनडिटरमिन्ड कोएफिशिएंट वाला मेथड यूज़ करना चाहते हैं, वो यूज़ करें। आप कहते हैं इनिलेटर ऑपरेटर यूज़ करना है, इनिलेटर ऑपरेटर यूज़ करें, कोई मसला नहीं। ये वाला जो पार्ट है जिसको मैंने ब्रैकेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, ये पार्ट आपकी अपनी एक्सपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है। मुझे जो सोल्यूशन मिला मैंने वो लिख दिया। आप जो सोल्यूशन जिस भी मेथड से फाइंड कर सकते हैं अननोन क्वेश्चंस में या प्रैक्टिस क्वेश्चन में, आपने उस मेथड से करना है। लाजमी नहीं कि उस मेथड को फॉलो करें जो मैं कह रहा हूँ। आपकी कमांड जिस मेथड पर है, आई रिपीट माय स्टेटमेंट, आपकी कमांड जिस मेथड पर है आपने उस मेथड को प्रायोरिटी बेसिस यूज करना है, उस मेथड को यूज नहीं करना जिसको मैं लेके चल रहा हूँ। वंस योर वाईपी इज कंप्लीट, और हर मेथड से ऑलमोस्ट आपका वाईपी सेम आएगा, कोई डिफरेंस नहीं आएगा। वाईपी इज कंप्लीट, प्रोपोजिशन प्रिंसिपल ये कहता है कि वाईसी और वाईपी को प्लस करके लिख दें, तुम्हारा आंसर आ जाता है। अगर आपके पास इनिशियल कंडीशन होती तो हम क्या करते हैं कि हम C1 और C2 कैलकुलेट करते। अभी इनिशियल कंडीशन नहीं है तो हम यहाँ पर कैलकुलेट नहीं करेंगे और अपने काम को सॉल्यूशन को यहीं पे स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट, अगेन वी आर हैविंग अ नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इस स्लाइड पे जस्ट मैं आपको हिंट्स दूंगा कि आपने क्या करना है। पहली बात याद रखिएगा, क्वेश्चन जब आता है क्विज में या एग्जाम में तो ये नहीं लिखा होता कि ये एग्जैक्ट नेचर का क्वेश्चन है, ये किस नेचर का क्वेश्चन है। देन व्हाट यू हैव टू डू इज टू वेरीफाई इसकी नेचर क्या है। सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसकी नेचर क्या है। वंस इट इज कंफर्म कि ये कॉशी ऑयलर इक्वेशन है, देन व्हाट यू हैव टू डू इज स्टेप 1, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू e पावर t। x इक्वल टू e पावर t का मतलब क्या है? x इक्वल टू e पावर t का मतलब है जहां पर x ऑफ d लिखा है वहां पर डेल्टा पुट कर दें, x स्क्वायर d स्क्वायर लिखा है डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 पुट कर दें। सिंपल आपकी इक्वेशन है, कन्वर्ट हो जाएगी। डेल्टा आप इसे खुद सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अदरवाइज इट कुड बी डेल्टा स्क्वायर माइनस डेल्टा एंड माइनस 2 डेल्टा हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा। वंस यू गेट अ डिफरेंशियल इक्वेशन, वो जो डिफरेंशियल, चले मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर देता हूँ क्योंकि जब तक वो इक्वेशन की फॉर्म सामने नहीं आएगी उस वक्त तक हम आगे बढ़ नहीं सकते, तो मैं उसे साइड पे कैलकुलेट करता हूँ। इट इज डेल्टा इंटू डेल्टा माइनस 1 माइनस डेल्टा प्लस 1 y is equals to natural log of x. This could be written as delta square minus delta minus 2 delta plus 1 y is equals to natural log of, sorry this is no more x, अब ये कन्वर्ट होके आ जाएगा। आप इसे x की फॉर्म में रहने देते हैं तो x की फॉर्म में ये सब्स्टिट्यूशन जस्ट आपने
होमोजीनियस पार्ट में करनी है, सो दैट मीन्स दिस नेचुरल लॉग ऑफ एक्स कैन नॉट बी हियर एनी मोर। यहाँ पर आएगा आपके पास 0 और 0, क्योंकि हम सिर्फ वाई सी फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस सब्स्टिट्यूशन। वाई सी की मदद से फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे, वाई पी है जो भी अपना काम करना है उसकी हेल्प से हम आगे लेके चलेंगे। वंस you get your equation del square minus 2 del plus 1 of y is equals to 0, step 2 ये कहता है कि substitute y is equals to e power mt। जब y equals to e power mt पुट करेंगे तो you will get your auxiliary equation in the form of m square minus 2m plus 1 is equals to 0। then you will write the roots। रूट्स जब आप फाइंड आउट करेंगे तो डिपेंड करता है कि रूट्स रिपीटेड आते हैं, रियल आते हैं, या जिस भी नेचर के आते हैं, आपने उसके अकॉर्डिंगली वाई सी अपना डिफाइन करना है और यू हैव टू कैलकुलेट वाई सी। वंस योर वाई सी इज क्लियर, देन नेक्स्ट इज अप टू यू, आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हैं। इफ आई यूज यहाँ पर दो मेरे पास वाई सी की दो टर्म्स आएंगी, दो सॉल्यूशंस आएंगे, एक y1 कह देता हूँ और दूसरे को y2 कह देता हूँ। If I have to generate yp, final step is to find yp। yp find out करने के लिए जो मेरे पास yp होगा that is u1 y1 u2 y2। u1 prime is equals to w1 prime by w, u2 prime is w2 prime by w। Sorry, this is not a prime। ये W2 के ऊपर जो मैं प्राइम यूज कर रहा हूँ तो डोंट टेक इट एज अ डेरिवेटिव, सो इस वजह से मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। अब W1 और W2 कैसे जनरेट होते हैं, ये सारा काम आपने बड़ी डिटेल से किया हुआ है प्रॉपर लेक्चर की फॉर्म में। मैं आपको थोड़ा सा डिफाइन कर देता हूँ। जब आप जिसे आप W का वर्ड यूज करते हैं, इट इज बेसिकली द रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन क्या था? रॉन्स्कियन वाज y1 y2 y1 प्राइम y2 प्राइम। जो यहाँ से y1 y2 आएगा, जस्ट यू हैव टू सब्स्टिट्यूट इन हियर f of x, ये f of x। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं थोड़ी सी करेक्ट करता चलूँ कि जब आपके पास y1 y2 आएगा, इट डजंट मीन कि वो जो t की फॉर्म में है आप उसे यूज करेंगे। बिफोर यूजिंग y1 y2 यू हैव टू अप्लाई द बैक सब्स्टिट्यूशन। इसे आपने t x इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ t यूज कर देना है। सॉरी, t इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x। t इज इक्वल्स टू नेचुरल लॉग ऑफ x सब्स्टिट्यूट करने के बाद जो फॉर्म आएगी x की फॉर्म में, हम उसके स्टेप 3 में हम उसे लेके चल रहे हैं, हम t वाली फॉर्म को लेके नहीं चल रहे। तो यहाँ पर y1 y2 जो यूज होगा दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ x, t की फॉर्म में नहीं होगा। सिमिलरली जब आप y1 जनरेट करेंगे, w1 जनरेट करेंगे, यू हैव टू रिप्लेस योर फर्स्ट कॉलम विद नेचुरल लॉग ऑफ x। नेचुरल लॉग ऑफ x इज बेसिकली नेचुरल लॉग ऑफ x बाय x स्क्वायर। ये वो फंक्शन है जो f of x जनरेट होगा। y2 prime, and similarly you can generate w2 से ये जो कॉलम मैंने लिखा है यहाँ पर, इस कॉलम को आप सेकंड कॉलम से जब रिप्लेस करेंगे w के, तो आपके पास w2 जनरेट हो जाएगा। Once u1 prime is found, integrate, find u1 after calculating this u1 आप पुट करें, your yp will be complete। Similarly y2 u2 सारा काम करने के बाद your yp will be complete। These are some basic questions जिन्हें आप प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम होती है वो इंशाल्लाह हम अपने सेशंस में डील कर लेंगे, अदरवाइज ग्रुप में डिस्कस